Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. What happened in Chicago Convention? This was the first convention that started ICAO, so most likely they invited all the countries to sign the convention, all the contracting states, and maybe this is where the annexures were adopted. Yes, very true. Chicago Convention. Convention means meeting. So basically, this meeting held in Chicago, right? And this is the photo of that day. You can see on the screen. Okay, this is a original photo of Chicago Convention when all the countries who wanted to become a member of ICAO they were present there, and a few others as well who didn't opt to become ICAO member that particular day. Okay, maybe they became members later. So on this day ICAO was formed. सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है बात क्या हुई उस दिन ICAO was formed. It happened on 7 December 1944. Convention on International Civil Aviation established ICAO. ICAO was formed in Chicago Convention. Specialized agency of UN charged with coordinating international air travel. काम क्या ICAO का इंटरनेशनल एयर ट्रेवल पॉसिबल कराना. Convention establishes rules for airspace, aircraft registration, safety, scrutiny, security, sustainability pertaining to taxation, details of rights, signatories related to air travel. That means everything related to civil aviation was decided in this Chicago Convention. Okay, everything in the sense जो भी annexures हैं, rules, regulations आप जो पढ़ रही हैं, जो भी बनने हैं, all of these were decided in this Chicago Convention. Okay. Document was signed on 7 December 1944 in Chicago by 52 signatory states. कितनी कंट्रीज आईकाओ के मेंबर्स बने उस दिन 52. Okay, 52 countries became member of ICAO that particular day. इंडिया ने साइन किया था. Yes, on the same day itself, India became a member of ICAO on 7 December 1944. Signed Chicago Convention. हाँ, मैंने बोला था फ्रीडम नहीं मिली थी. हमने कमर्शियल फ्रीडम्स ऑफ एयर साइन नहीं की थी. आईकाओ के मेंबर तो बने हम उस दिन. टेक्निकल फ्रीडम्स ऑफ एयर हमने साइन की. वी डिडंट साइन कमर्शियल फ्रीडम्स ऑफ एयर. वी डिडंट अलाउ फॉरेन एयरलाइंस टू एंटर इन इंडिया. ओके, वी बिकेम अ मेंबर ऑफ आईकाओ. फाइन, गुड इनफ. आगे चलें. नेक्स्ट वन इज वॉरशो कन्वेंशन. वॉरशो कन्वेंशन. वॉरशो कन्वेंशन क्या बताती है? अगर मान लो आपका लगेज गुम हो गया, आप क्या करोगे? लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर इंडिया से आप ट्रैवल कर रहे हो, मे बी आप दुबई से आ रहे हैं मुंबई. ओके, दुबई से क्या लेके आते हैं लोग जनरली, पता है आपको? गोल्ड. यस, गोल्ड लेके आ रहा था मैं, सोना लेके आ रहा था मैं खरीद के, और मेरा बैग घुमा दिया इन्होंने. क्या करूं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन यू डू? कंप्लेन फाइल करने पे एयरलाइन हैज टू पे जो भी डैमेज है उसका कुछ वैल्यू. Yes, you file a complaint and the airline will pay you some money, pay you some compensation, right? And that compensation, कितना होगा वो compensation? How do you decide that? Or how the airline decide that? मेरे बैग में था गोल्ड. Will it matter मेरे बैग में गोल्ड है या मेरे रेगुलर क्लोथ्स हैं या कचरा भरा हुआ है उसमें? Does it matter? Will it be according to weight, dimensions of the bag, or as per the material in the bag?
or whatever you have declared in your form, what are you carrying? All of these things are written in Warsaw Convention. समझे? Warsaw Convention deals with कि जब भी कोई पैसेंजर एयरलाइन में टिकट बुकिंग करेगा तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एयरलाइंस with regard to passenger. It covers obviously your luggage, your baggage, your cargo, whatever item you are carrying, everything needs to be protected by the airline, as well as safety of the passengers. That is also responsibility of airline, right? ठीक है. So it deals with what are the rights of passengers or what is the airline's responsibility in terms of passenger as well as cargo and baggage. Clear? अच्छा, आप इसको याद रखेंगे कैसे? वॉरशो मैंने जो याद कर रखा है, सो से मुझे याद आ जाता है सोना, बिकॉज मेरा वो वाला बैग गुमा था जिसमें मैं गोल्ड कैरी कर रहा था. ओके, वॉरशो सोना जो मैं दुबई से कैरी कर रहा था एक बैग भर के, जो मैंने ऑब्वियसली डिक्लेयर नहीं किया था. इलीगल है ना, कैरी करना इलीगल है, फिर भी लोग कैरी करते हैं. देखा होगा आप लोगों ने, न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, देखिए. तरुण और अच्छे से बता पाएगा. तरुण चला गया क्या? एयरपोर्ट्स पे होते रहते हैं किससे, एवरी नाउ एंड देन, न्यूज़ वगैरह में सुना होगा आपने. फाइन. वॉरशो कन्वेंशन डील्स विद लाइबिलिटी ऑफ फॉर इंटरनेशनल कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, लगेज, गुड्स, कार्गो परफॉर्म्ड बाय एयरक्राफ्ट फॉर रिवर. इंटरनेशनल कन्वेंशन साइंड इन 1929 इन वॉरशो. ये शिकागो कन्वेंशन से भी पहले की है. ओके, 1929 में साइन हुई थी ये. रेटिफाइड बाय इंडिया. इंडिया इस कन्वेंशन को मानता है, इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन की है. इंडिया agrees with this convention that if there is any loss of baggage by an Indian airline of a foreign passenger, अगर किसी फॉरेन पैसेंजर का लगेज इंडियन एयरलाइन ने घुमा दिया तो that Indian airline has to pay money to that passenger. Clear? Rome Convention. Rome Convention is, let's say, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि let's say I was walking, मैं अब शाम को अपने घर के बाहर वॉक कर रहा था, राइट, और एवरीथिंग वाज फाइन. देयर वाज दिस एयरक्राफ्ट विच वाज फ्लाइंग ओवरहेड. इस एयरक्राफ्ट का कोई एक कंपोनेंट टूट के आके मुझे लगा और मुझे चोट लग गई, मुझे खून आने लग गया, राइट, एंड मे बी आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल एज वेल. मे बी वहाँ पे मैं 3 दिन तक एडमिट रहा. हु विल पे फॉर ऑल ऑफ दिस? समझ रहे हैं, मुझे जितनी परेशानी हुई, हु विल पे फॉर ऑल ऑफ दिस? व्हाट डू यू थिंक? रोम कन्वेंशन बताएगा कौन पे करेगा. ओके, इफ देयर इज एनी डैमेज टू एनी पर्सन ऑन ग्राउंड, एनी प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड. ये मान लो किसी का घर था, आप ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो, आपने इसके घर को तोड़ फोड़ दिया, राइट, क्रैश हो गया इसके घर में, कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई इसके लिए? Isn't it? इसकी क्या गलती है? He should get some compensation. Who will pay for that? Any damage on the surface, any damage to any person, any property on the surface by a aircraft registered in another state. अब मान लो मेरे को जो चोट लगी, इंडिगो के जहाज से चोट लगी. अगेन आईकाओ ने बोला कि आपके घर का मामला आपके घर में सुलझ लो आप. Why am I involved? Right? इंडियन एयरलाइन, इंडियन पैसेंजर जिसको चोट लगी, इंडियन नेशनल जिसको चोट लगी. आप देखो कैसे आपस में यू वांट टू सेटल इट आउट. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईकाओ. ओके, फाइन, ठीक है भाई, मान ली हमने बात.
फॉरेन एयरलाइन से मुझे चोट लगे या फिर एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट से इंडिया के बाहर किसी को चोट लग रही है. ओके, व्हेन पैसेंजर्स आर बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट, डी बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट, मान लो जो स्टेयर्स लगाते हैं, मान लो स्टेयर से कोई गिर गया, ठीक है, बीच में वो टूट गई, पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट पैसेंजर नीचे गिर गया और पैर में चोट लग गई, हड्डी टूट गई. Who is responsible? That as per Rome Convention, that airline is responsible, this aircraft is responsible, isn't it? How much should be the compensation? That is again written in Rome Convention. समझ आया रोम कन्वेंशन किससे डील करती है? ओके. Convention which deals with damage caused by foreign aircraft to third party on the surface. Okay, foreign aircraft to third party on the surface. International treaty concluded at Rome 7 दिसंबर 1952. 7 दिसंबर 1952 में रोम में साइन हुई थी. क्लियर? इंडिया ने साइन की है ये? नहीं की. इंडिया हैज नॉट साइंड दिस. क्यों? भाई इंडिया को पता था कि एयर इंडिया की जहाज की हालत क्या है. की थी हमने अभी बात थोड़े दिन पहले. आप इसी बैच में बात चल रही थी क्या? वो खिड़की हाथ में आ गई थी पैसेंजर के, नहीं? अच्छा चलो, टेक्निकल वाली क्लास में होगा वो. देखा था आपने? हो गया अभी तो, आई गेस 3-4 साल पुरानी बात है ये. एक रील फेमस हुई थी काफ़ी. वो पैसेंजर बैठा हुआ था और विंडो उसके हाथ में आ गई, एयरक्राफ्ट की विंडो. है याद? एयर इंडिया की, चलो अभी तो ये टाटा आने के बाद तो फिर भी थोड़ा से सुधार दिख रहे हैं. एयर इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स इमेज. इससे पहले तो लोगों को डर लगता था एयर इंडिया की जहाज में बैठने से, राइट? कुछ नहीं पता भाई, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाए इसको. ऐसी हालत थी इनकी. इंडिया को पता है एयर इंडिया की जहाज की हालत ऐसी है, कभी भी टूट के कहीं भी गिर सकते हैं, किसी को भी डैमेज कर सकते हैं. तो इंडिया ने बोला भैया ऐसा है, हमारे एयरक्राफ्ट से किसी को डैमेज होता है तो हम पैसे नहीं देंगे, बदले में किसी दूसरी कंट्री के एक जहाज से इंडिया में डैमेज होता है तो तुम भी पैसे मत देना. इंडियंस तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है. किसी का घर टूट जाए, किसी को चोट लग जाए, पैसे तो मांगते ही नहीं है वो तो, राइट? काफ़ी समझदार है. तुम भी मत देना पैसे, ठीक है? तो इंडिया ने ये ट्रीटी, ये कन्वेंशन साइन नहीं की. ओके, इंडिया. Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.